but then how does their battery goes to absolutely dead when it comes to shopping? I mean, shopping का problem क्या है यार? कोई किसी को खुशी देने में problem आती है? जो shopping के लिए walk होती है उसमें इतनी दिक्कत है कि मैं नहीं जाऊँगा. तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हें मेरी वाइफ से पूछना चाहिए. उनके लिए अगर किया जाए तो उनको बहुत पसंद आता है. अच्छा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा. उसमें कुछ कुछ होता रहता है, कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें टर्न्स आती रहती है. तो आप उन्हें कैसे एक कंफर्टेबल जोन में लेके जाओगे? लाइक इफ यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, एनी फ्रेंड, एनी फीमेल. One thing women do that men will never understand. Size, their shape, their body, whatever it is. आप उन्हें कैसे कंफर्टेबल फील कराओगे? वो जो ग्रेस होता है वो बहुत आराम से आसानी से कैरी कर सकती है. So every woman is beautiful. It's no size, no shape, no color, nothing. That's all just. तो पता है सब बार-बार ये चीजें वो कर रहे हैं. ये तक क्या सपोज कर रहे हैं? Hey, but why are you saying that? I strongly disagree with this. I also totally Clothing has a vast variety. in days and nowadays I will rate you like 1 out of. No, -100. फीलिंग क्या होती है? मेरी ऐसी नस दबा दी आप लोगों ने जो मैंने ऑलरेडी देख रही है. So are you doing that? मैं मरना थोड़ा सा वैसा आंसर आ रहा था. But you just need to answer. वहाँ देखो और बोलो I love you. लेडीज तो बहुत इमोशनल होती हैं. हम लोग कुछ भी बात करेंगे तो पता नहीं कौन सा एंगल कहाँ चला जाएगा. हमारा पति कैसा हो, विक्रांत कौशल जैसा. If you could ask one question to any woman in this room, who would it be and what would you ask? Hey, Soumya, have you seen this movie called Mrs. जिसमें सानिया मल्होत्रा है दंगल वाली? राइट. अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही वो चीज देखी है एंड इट्स सो गुड दैट किसी ने सोचा उस बारे में भी, उस चीजों को उस प्लेटफॉर्म पे ले आना कि हम लोगों तक पहुंचे कि हाउ अ वुमेन इज मैनेजिंग लाइक उनका काम भी, उनका घर भी. बिकॉज हम काम को तो बहुत जगह प्रेज करते हैं बट घर पे वो क्या काम कर रही होती है ये कोई नहीं दिखाता है. राइट. सो इट्स सो गुड एंड इट्स सो रिलीविंग कि एटलीस्ट नाउ एवरी पीपल नो कि ठीक है वुमेन्स आर आल्सो डूइंग दिस मच ऑफ थिंग्स. राइट. And I was also watching the reviews यार कि कितना मुश्किल होता है वुमेन के लिए हाउस होल्ड चोर्स को भी संभालना प्लस प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लिटरली मेस को संभालना. ट्रू 100%. I mean, truly, Women's Day पे अगर we are not addressing the elephant in the room, which is obviously women's, struggle with everything, be it their homes, be it their corporate life, everything. 100%. कितना ज़्यादा difficult है. So I think we should call some men from our firm and let's have their opinion कि exactly what women want and what are some type of processes. Yes, it's high time. Yeah, that men have about women. So let's have 100%. some men, some folks from our consortium's family in the lot. So now as we have some men's perspective in the women's of today, we have some special guests from Consortium Gifts. Our guests for today is Mr. Anubhav Pandey, Mr. Gulshan Kumar and Mr. Vikrant Kaushal. So we would really love to know your perspective on really like what women want. So over to you, Soumya. You must know what they want. Yeah, definitely. So let's just start it. Yeah, sure. Okay, over to you. So let's just welcome Anubhav Pandey. So I just wanted to know what's hard for you hitting your sales target or understanding a woman's mind. Obviously, woman's mind. Yeah, it's a self-obvious. Like, I mean, it's so popular says that औरत को कोई नहीं समझ सकता. So yeah. True. And okay, like apart from jokes apart, I would actually want to say that nothing is impossible. If you actually want to understand someone, whether it's man or woman, so we can do that. And it's all about your feelings. It's all about your emotions, which you put together to understand someone. So I feel it's doable. But if you go with the right intention, with the right heart, with the right things, with the right selection of words, so yeah, it's possible. She is the master of. There be just a... So my next question would be, if women were a brand, what would be their tagline? I think it's a difficult because every woman has a different personality. If suppose I want to give a tagline to my wife, so I would say the heart of empathy.
Very nice answer. Actually. बच गए. A plate. And suppose if I need to give a tag to my mom, so then I would say the supporter. Short and crisp. If I need to give a tagline to my daughter, so I would say creator. Oh, heavy. Right. If I want to give a tagline to you, Yashika, Please go ahead, sir. so I would say heart of diversity. Thank you. I will take it as a Wow, Anubhav. Heavy answers. I also have one word for her. Relentless. Thank you, Gush. So again, every woman has a different personality. Every woman has a different persona. So one tagline I don't think right fit for someone. So yeah, this is what I would. Thank you, Anubhav, for the amazing answers. Okay, my question is from Mr. Vikrant. So I just want to ask, like, what will be the one piece of advice you would like to give the young men, like, to support or to respect women? Very heavy question, but simple answer. Never judge women. Never question women. The advice is like, they are the powerhouse. They are the one who always go extra mile. मतलब लड़के तो बस रह ही जाते हैं सोचते सोचते and ladies and women, they just execute and they do it. They make it happen. So I would say one simple advice, don't judge them, because as the saying says, don't judge the book by its cover. Try and understand the woman, because मतलब end of the day they are the ones. Because of this world ये सृष्टि चल रही है. So because of that it's happening. So I think one single advice, don't judge the woman. So respect her, respect and do whatever best you can do, to make women comfortable. So from your point, we can say like women are not that tough to understand, or it's very easy to handle a woman or something that is coming from. देखो जी, simple सी बात है. Women are very tough and that's why they are the powerhouse. But the point is, it's not about tough and, they are like, they are the ones who take care of everyone. They are the ones who's taking care of. Take an example of this podcast. You guys have done everything. It's like, looking like more like a men's podcast, but it is like, that the women's podcast. But I would say no, it's not tough to understand. You have to just give some time. Give your ears to women. Give yourself, to understand them. And I think it's not possible. So as saying says, it's not impossible. So it says like, I am possible. So you just understand the ladies, understand the women, respect, and it's not at all hard to understand. Very, very simple, CHL. What they want exactly. They want your love, your emotions. What else they want? Otherwise, even they are like best givers in the world. So I don't think like judging them is right. True. So nobody can judge women. And as in the last round you mentioned, like, tagline. So as he says, Anubhav said, like, tagline to de hi nahi sakte yaar, har kisi ka alag persona hai. But I think one tagline is the powerhouse. All women are powerhouse. They are like, they are the behind, every successful men, companies, everywhere. So it's not like, the tagline can't be given. That's very, very true. I would say. They are the powerhouse. You believe in the myth that like there is a women in like behind every success of a man or something? I wouldn't say it's a myth. I agree with this. Strongly. Every woman, I strongly agree with this. And it's very simple. Why? Because see, you have your mom at home. Like, we have sister, wife, colleague, cousins, all of them around us. And they are somewhere supporting you, and we are there to support them as well. So it's a give and take kind of a relation where it is more important to understand, the woman. So I won't say it's a myth. It's 100% agreed. That I would say. Like one another question, like what exactly the change you want in your workplace for like which can make the things fair for the women or like respected towards the women? बहुत simple. Respect. अगर change करना है within the society or within the office or the workplace, I think the best is give equality. Don't treat
women separate, men separate. There is nothing like men are here or women are here. They are equal. So equality. Office के अंदर या workplace के अंदर, it's a simple fact that it should be equally treated. Same opportunities that is coming to me or to them should come to you guys also. Depending on the caliber that the person can take, I think उसके अलावा there is nothing. Equality is something that I would always say, it should be there. Yeah, that is true. That is true. दूसरा पॉइंट ये भी है कि आप अप्रिसिएट करें. मुझे लगता है कि जो भी काम करते हैं औरतें, विमेन जो भी करती हैं, हमें अप्रिसिएट करना चाहिए उनके काम को. आप जितनी बार करेंगे उससे रिस्पेक्ट भी आता है. यू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग, व्हाट्स देयर इंटेंशन बिहाइंड इट. सो वी शुड अप्रिसिएट देम मोर ऑफन. And I little bit disagree with Vikrant there, but what I feel, no, on what point I disagree, that what I feel that women are superior creature. अगर कोई पिरामिड ऐसे बनाई जाए तो उस पिरामिड में by birth they have values, they have everything, sure, and उस पिरामिड में they'll be at the top and men they are like very at the bottom, and what they do is like they have to come down, okay, little bit in that pyramid, और जो men होते हैं उनको थोड़ा ऊपर चढ़ना होता है, तभी जाकर के हम उनके लेवल तक पहुंच पाते हैं. तो उस हिसाब से अगर देखो तो ये मेरा पॉइंट है कि आप थोड़ा सा I agree with you. That's why I said, शिष्टि चली वुमेन से रही है. So ये world, earth, universe is happening because of the woman. Only bachelor who is very ready to get married. Actually, when I will get married, I have told this to my mother that I will tell my wife that तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, जो तुम कह रही हो ठीक है. तो ये मेरा है कि हाँ, पत्नी सर्वोपरि है. Safe play था ये. Okay, so since Mr. Gulshan knows how to woo women, how they, he can go through a woman's heart and he is so well versed about it, we would love to know, and obviously the viewers would love to know, कि एक woman को exactly क्या चाहिए? मतलब what is the woman's ask? What do they actually want is something that we want to know. शॉपिंग छोड़ गया. आपने दिया था वैसे. That's true even. ये एक पॉइंट है. इसके अलावा आई थिंक रेस्पेक्ट, दैट इज वन थिंग दैट एवरी वुमन दे वांट. मैं एक ऐड करना चाहता हूँ. So, जैसे एक सेइंग होती है ना कि हर आदमी का खुशी जो है वो पेट से जाती है. वुमेन कुक्स एंड एवरीथिंग. आई थिंक वुमेन को और लेडीज को खुश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. दैट्स अ स्मॉल सॉलिटेयर दैट यू कैन बाय फॉर हर एंड इट मेक्स हर हैप्पी फॉरएवर. कुछ भी काम करवाना हो, वन सॉलिटेयर and that is done. Okay, I think sir has experience of this thing. Like sir ने घर में किया है. He has done it. तो ठीक है, it's good. नहीं खरीद सकता वो SIP जो नहीं खरीद सकता है वो अभी से अगले 2 साल के लिए छोटी सी SIP स्टार्ट करे, उस अमाउंट का पर्पस ज्वाइन करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो देना पड़ेगा. मैंने SIP स्टार्ट कर दी है. और एक पॉइंट मैं भी ऐड करूंगा इसमें. आई थिंक उन्हें as you mentioned कि उन्हें क्या चाहिए, मतलब what make them feel happy. I mean हम ना वुमेन्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए शायद हम वुमेन्स डे को इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं. I mean क्यों? अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ती या प्रायोरिटी उनको दे रहे होते, हर चीज में उन्हें हम अपने साथ में ऐड कर रहे होते, उतना ही कंट्रीब्यूशन है उनकी जो भी उनको हम इतना इंकरेज कर रहे होते, इतना नोटिस कर रहे होते, तो शायद आज हमें सो कॉल्ड वुमेन डे की जरूरत नहीं पड़ती. तो आई थिंक दिस इज आई थिंक द नीड ऑफ द आवर कि हमें उनमें प्रायोरिटी देनी होगी, encourage करना होगा. I think I would say Anubhav very well said, but at the same time Father's Day भी आता है, Mother's Day भी आता है, Men's Day भी आता है, all that days are there. So I think वो equality देने के लिए भी शायद it's important to celebrate Women's Day, क्योंकि you have to appreciate women. It's a simple fact. अगर women को appreciate नहीं करोगे then how the life will go on. You just remember that. Just remember those that solitaire it is actually worth, and that is like true that. So I mean, moving forward, Gulshan, we would really love to know, since this is like a very household situation, but you are about to move on to that situation also. Why do men suddenly become clueless
when they are asked what do you want for dinner, मतलब क्या खाना है तुमको रात को, और सडनली उसमें आंसर बहुत ही रैंडम आता है, कुछ भी चलेगा। ये कुछ भी क्या है, और कुछ भी बनाएंगे तो खाओगे तो हो नहीं। कुछ भी में क्या आपको चाहिए एग्जैक्टली, वो कुछ भी कौन सी डिश होती है? आई जस्ट वांटेड टू नो, वी जस्ट वांटेड टू नो। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब आप, ऐसी तो मेरी सिचुएशन अभी आई नहीं, मैं यही बोलने वाला था। क्वेश्चन है बीन आस्क्ड ऑल्सो द रॉन्ग पर्सन, बट एक मैंने पोइट्री लिखी थी कि मैं चाहता हूँ कि वही तय करे, है ना, कि मैं क्या खाऊंगा। बेटर है कि मेरे हेल्थ के लिए शी कैन डिसाइड। उसमें था कि अब मैं क्या कपड़े पहनूंगा, खाना क्या बनेगा, ये वही तय करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शी नोज बेटर एवरी टाइम। आई मीन, तो बिकॉज ये भी है ना कि जो सोसाइटी में पहले से चली आ रही है, वीमेन आर नर्चरर, तो नर्चर करती हैं, तो उनको ज़्यादा पता होता है हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में। तो वो अगर बताएंगे कि क्या खाना बनेगा, तो मुझे लगता है कि टेस्टी ही। आज तक जितनी बार मेरी माँ ने खाना बनाया है, अपने दिमाग से ही बनाया है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत टेस्टी खाना था। जितने भी रेस्टोरेंट में 5 स्टार या 3 स्टार रेस्टोरेंट में जो मैंने खाना खाया है, उससे ज़्यादा ही टेस्टी था वो। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है, लकी गर्ल आई गेस कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हुआ क्या है, जब लेडी बोलती है ना कि क्या खाना है और हम बोलते हैं कुछ भी, तो बेसिकली वो माइंडसेट समझने वाली बात है दैट शी इज नॉट रेडी टू कुक टुडे। कुछ बाहर से मंगाना है, कुछ बढ़िया सा खाना है। वो मोनोटोनसली जो घर पे बनता है और वो सब भांडे वांडे सब टकरा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग को रोकना है। एंड देन यू नो वी हैव टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट टू पैम्पर हर। ये तो डेली होता है, तो क्या मतलब? ठीक है, आई एम टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द बेस्ट। तो मैं अच्छा, मुझे क्या लगता है, जब भी पूछते हैं कि क्या बनाना है और हम बोलते हैं कुछ भी, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जो तुम्हें ईज लगे, जो तुम्हारे खाने का मन हो। तो नोटेड डाउन, वेल नोटेड। उसके बनाने के बाद अगर खाने से मना किया गया, फिर हमारा क्या होना चाहिए रिएक्शन? उसी सिचुएशन को संभालने को कहते हैं स्विगी, जोमैटो, प्लेसेस। These food apps will save you. इससे तो पुष्पा भी नहीं बच पाया था। True. So, since we are talking about कि what exactly women are into, आपको क्या क्या चीजों का याद रखना है and all, and regular household routines and everything. So, my question is to Mr. Anubhav Pandey that अगर सपोज घर में अभी, जैसे हम रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे कि गर्मी ज्यादा है यार, ठंडा ज्यादा हो रहा है, ये एसी चलाओ यार, मतलब ऐसे नहीं बैठ सकते, तो घर में अब जब आपकी बात चल रही है, तो किसकी बात को ज्यादा ऊपर रखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ द एसी टेम्परेचर, कि ये एसी का टेम्परेचर 18 रहने वाला है, नो आई वांट स्लाइटली वार्मर, लेट्स डू इट 24-25। दैट्स द रियल डिबेट इन टुडेज टाइम कि एसी का टेम्परेचर एग्जैक्टली रहेगा कौन और जीतेगा कौन इसमें। अगर रिलेशनशिप को चलाना है और अच्छा चलाना है, तो देखो, एक को बेवकूफ बनना पड़ेगा और एक को स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर चलाना है तो अब अगर एक छोटी सी लड़ाई हार के एक बड़ी बैटल जीत सकते हो, तो आई थिंक एसी का टेम्परेचर जो वो चाहती है रहने दो। एंड विच इज व्हाट एग्जैक्टली अभी आपके घर में? अभी तो मेरी डॉटर के पास रहता है। अभी टेक ओवर हो गया। तो अभी वो जो चाहती है वही होता है। बट अगेन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसी सिचुएशंस तो लाइफ में बहुत आती हैं, जो कभी लगता है कि मेरे मन की हो, वो कहती नहीं मेरे मन की हो। तो आई थिंक अगर अंडरस्टैंडिंग आपस में एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और पता है कि किस इंटेंशन से कोई क्या करना चाहता है, और अगर वो इंटेंशन समझ में आ गई, जैसे हम सेल्स में बोलते हैं ना, DBM, लाइक डोमिनेंट बाइंग मोटिव, अगर हमें पता चल जाए सामने वाले को कि इसका बाइंग मोटिव क्या है, तो शायद हम उसको इजीली सेल कर दें। तो आई थिंक सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, अगर पता चल जाए इंटेंशन क्या है। अगर कोई सिर्फ अपना ईगो प्रूफ कर रहा है तो ठीक है, जीत जाने दो, और अगर कुछ समझ रहा है तो आई थिंक वो आपकी बात भी समझेगा, आप उसकी भी समझोगे। टूल्स एंड अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं, AI टूल्स यूज करते हैं। तो घर में सिंपल सा टूल है एक ब्लैंकेट। अगर उसको ठंड लग रही है ब्लैंकेट, तो अगर तुम्हें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू टेक द टाइम ब्लैंकेट। आई थिंक एवरीवेयर द डिफरेंट टूल्स कैन बी यूज्ड। अब जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात चल ही रही है और इतना डिस्कशन हो ही रहा है कि अब किसकी बात माननी है, सो देन द अनदर टेक इज टुवर्ड्स टीवी।
So now, because men's are such true fans of cricket, Mr. Virat Kohli and miscellaneous, and we all know you are a true enthusiast towards cricket and everything, and you have true emotions and serious emotions towards commitment towards cricket and everything. So our question is कि जब आदमी 5 घंटे क्रिकेट मैच तो बढ़िया देख सकते हैं without a blink of an eye, but then how does their battery goes to absolutely dead when it comes to shopping? I mean, shopping का problem क्या है यार? कोई किसी को खुशी देने में problem वो जो शॉपिंग के लिए वॉक होती है उसमें इतनी दिक्कत है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम खुद करो। एग्जैक्टली वो तो आंसर चाहिए हमें। ऐसा क्यों? I think यह सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है कि मेंस को शॉपिंग में प्रॉब्लम होती है. लाइक you all my colleagues, you've seen me, like, you know, the kind of clothing collection I have. So I think ये क्वेश्चन तुम्हें मेरी वाइफ से पूछना चाहिए कि उसको शॉपिंग करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है. लेकिन ये स्टीरियोटाइप है, ऐसा कुछ नहीं होता. सबको शॉपिंग अच्छी लगती है, मेंस आल्सो लाइक शॉपिंग. और हाँ, हम थोड़ा सा क्विक डिसीजंस लेते हैं, गर्ल्स थोड़ा सा ज्यादा चूजी होती हैं. बार्गेनिंग. हाँ, अब तो शॉपर स्टॉप और पैंटालून्स और ऐसे है, तो यहाँ पर बार्गेनिंग का तो नहीं इशू होता. बट हाँ, उन्हें ज्यादा टाइम लगता है और हमें कम टाइम लगता है. लाइक वी कैन टेक डिसीजन बिट क्विकर देन वुमेन्स. तो इस वजह से शायद उन्हें लगता है कि यार इतने टाइम में तुम ये भी कर सकते थे, उस टाइम में वो भी कर सकते थे. बट ऐसा नहीं है. आई लव शॉपिंग एंड अगेन इट्स काइंड ऑफ अ टाइम विच it's a quality time which I spend with my family, with my wife, when we both go for a shopping. And वो मेरे लिए कपड़े चूज करती है, मैं उसके लिए चूज करता हूँ. तो it's again a feeling and emotions when we see each other in a different clothes and different things. तो again ये पर्सपेक्टिव की बात है. मुझे ये भी लगता है कि मेल लव शॉपिंग when it is done for them. उनके लिए अगर किया जाए तो उनको बहुत पसंद आता है. अच्छा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा. अगर आप उनको भी इंक्लूड करें कि ठीक है मैं अपने लिए भी कुछ खरीदूंगी और तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदा जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये होगा. और दूसरा ये भी है कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट भी उसमें, कि आपका जो मेन का माइंडसेट होता है कि 5 घंटे क्रिकेट देख सकते हैं, उसमें कुछ कुछ होता रहता है, कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें टर्न्स आती रहती है क्रिकेट में. ये शॉपिंग में थोड़ा सा मिसिंग होता है. नहीं, but why are you saying that? I strongly disagree with this. I also totally Clothing has a vast variety. in this and this I will rate you like 1 out of. No, -100. कि नया एड ट्रेनिंग लूंगा स्टे के बेटा. ये देखिए स्टे बेटी है. I think 2 legends are sitting like, with you. I'm learning from them. I think He's learning from the best. Yeah. A best in town. तो मैं आप पर ही आ रही थी इसी चीज़ों को लेके. तो जैसा लेकिन हम सबको पता है ना कि सोसाइटी में देयर इज़ अ प्री सेट ब्यूटी स्टैंडर्ड फॉर अ वुमेन, राइट? तो आप उन्हें कैसे एक कंफर्टेबल जोन में लेके जाओगे? लाइक इफ़ यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, एनी फ्रेंड, एनी फीमेल, कुछ कोई भी आपके रिलेटिव या कोई भी है, तो उनके रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, देयर शेप, देयर बॉडी, वॉट एवर इट इज़, आप उन्हें कैसे कंफर्टेबल फील कराओगे बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स? पहले तो जो ये क्वेश्चन एक्चुअली में काफ़ी सेंसिटिव है, तो मैं थोड़ा सा इसमें ये लॉजिकली कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी विमेन है, जैसे इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, तो जो इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं एक्चुअली में वो एक कर्वी बॉडी, एक ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें अपने कंफर्टेबल हो, अपने स्किन में कंफर्टेबल हो. पहली बात तो ये है कि अगर विमेन अपने स्किन में कंफर्टेबल होती हैं तो वो जो ग्रेस होता है वो बहुत आराम से, आसानी से कैरी कर सकती हैं कोई भी. तो अगर वो हो रहा है, ठीक है, तो आई विल लाइक दैट. पहली बात तो ये. दूसरी बात कि अगर हमें ये ट्रीट करना है ना, एक स्टोरी है कि एक बंदा था, उसको एक केयर टेकर की ज़रूरत थी और वो मिलियनेयर था एक्चुअली में, बट ही वॉज पैरालाइज्ड, पूरी बॉडी उसकी पैरालाइज हो गई थी. उस मिलियनेयर को कोई जितने भी केयर टेकर थे, किसी को भी उसने सेलेक्ट नहीं किया. एक ऐसे ही रोड से किसी को उसने सेलेक्ट कर दिया, बिकॉज ही यूज्ड टू मेक हिम फील कि तुम पैरालाइज नहीं हो, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते थे. तो वी शुड स्टॉप ट्रीटिंग वीमेन लाइक ऑब्जेक्ट नहीं है यार वीमेन. तो आप किसी भी शेप साइज में आए, ठीक है, वो सबसे जो बड़ी बात है वो होना चाहिए कि कैसे वैल्यूज़ हैं, कैसे कैरेक्टर हैं, कैसे बातें करती हैं, कैसे आप है ना, आप कैसे रहते हो, कैसे ग्रेसफुली अपने आप को कैरी करते हो, ये इम्पॉर्टेंट है. बाकी तो है ना, दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज़ है, वैसे तो कहा ही जाता है, ठीक है. तो
ऐसा नहीं है कि दीवार को हमने गलत कहा है, ये इसका मतलब ये है कि आप कैसे देखते हैं, ठीक है। और ब्यूटी ऑलवेज लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, हाउ वी सी इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो हमें ये है कि हमें एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करनी है, हमें अपने जो आईज में अपने पर्सपेक्टिव क्रिएट करनी है कि हम कैसे देख रहे हैं। सो एवरी वुमेन इज़ ब्यूटीफुल एंड मेरा ये एक और मानना है कि विमेन आर ईदर ब्यूटीफुल और वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसा है ही नहीं कि कोई खूबसूरत नहीं है, या तो बहुत खूबसूरत होती है, नहीं तो खूबसूरत तो होती ही है, ये तो है। Okay, so you want to add on something? He just nicked my last sentence. You know how you see. अब देखते कैसे उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है. So every woman is beautiful. It's no size, no shape, no color, nothing. That's all just देखने का नजरिया, बनाने का एक बस rituals बन गए. Otherwise, every woman is beautiful. Just wanted to ask why there is very rare conversion rate in boys when it comes to friend zone और उन्हें just friends ये वाले टैग्स दिए जाते हैं, just friends। तो ये क्यों है, मतलब ऐसा क्यों होता है? Have you faced anything like this? Yeah, I have been friend zone, इसमें कहने वाली बात रही नहीं है। सॉरी भाई। And आप explain कर सकते हो? आप मतलब एक स्टैट है कि आप कितना भी कुछ कर लो, है ना, 10% से ज़्यादा नहीं होता है कन्वर्जन, तो यू जस्ट ठीक है, ये सेल्स में भी है। So what's the reason? रीज़न कुछ नहीं है, ऐसा भी है कि कई बार आपको नहीं समझ में आता है ना, कई सारी चीज़ें नहीं समझ में आता, उनको नहीं समझ में आता, आपको भी नहीं समझ में आता, तो नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि यू विल फाइंड द राइट पर्सन व्हेन इट इज द राइट टाइम। तो ये मैं यकीन रखता हूँ। तो जब भी फ्रेंड जोन होता है तो ऐसा नहीं है, जब भी हुआ हूँ तो ये सोचा है कि ठीक है, तो बेहतर ही हुआ है, मिल गया है। सिंस आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, तो बेहतर ही हुआ है। यस, आई बिलीव दैट। वो फीलिंग क्या होती है when you are फ्रेंड जोन होने की? अब जब ये बात पता चलती है तब तक काफी देर हो जाती है कि आई हैव बीन फ्रेंड जोन। ये बात ना ऐसे बताया नहीं जाता कि देखो, एक्चुअली में कोई ऐसी लड़की आपको आके नहीं कहती कि देखो आप फ्रेंड जोन कर दिए गए हो। I think girls के ज्यादा बड़ा फ्रेंड जोन होता है ना। एक्चुअली वो गर्ल्स बॉयज में भी वैसा है ना, इस वजह से है ना। Now the population is more towards the women, इसलिए that's why. सो यहाँ पे मैं कुछ पूछना चाहूंगी गुलशन से। आप 2 लाइन में एक शायरी बता दीजिए, वाई वुमेन्स आर ऑलवेज राइट। एक तो मैं ना सवाल थोड़ा ट्विक करना चाहूँगा एक्चुअली में, ठीक है, बार-बार ट्विक करा रहा है। क्वेश्चन ही घुमा दिया, ये घुमाने की बात नॉट अलाउड। मैं वो बताऊंगा जो मुझे आता है। नहीं, we'll come to the poetry, but the thing is women have every right. That is my point, कि उनको सारा ही अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सही गलत का तो बहुत ही बड़ा पैमाना है, अगर पैरामीटर देखें तो बहुत है, राइट रॉन्ग के बीच में ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सर ने भी कहा कि बीच में नेगोशिएशन में पहुंच जाएंगे, तो उसमें एक और भी बात होती है कि आप कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, अगर मालूम हो यह तरीका तो हर बात सुनी जाती है। तो उसमें तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे कह रहे हो कि हाँ आप ठीक हो, आपकी जो बात है वो बहुत सही है। वैसे मैंने कुछ लिखा था वाइल बैक, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि मकां को घर कैसे बनाती हैं औरतें, मकां को घर कैसे बनाती हैं औरतें, आदमी बिखरता है संवारती हैं औरतें। आदमी बिखरता है संवारती हैं औरतें, और हर आदमी उलझा हुआ है अपने अपने लॉजिक में। हम काफ़ी लॉजिकल क्रीचर होते हैं ना। हर आदमी उलझा हुआ है अपने अपने लॉजिक में, उस लॉजिक को भी लॉजिकल बनाती हैं औरतें। क्या बात है, क्या बात है, वेरी डीप। वहाँ देखो और बोलो आई लव यू। Yeah, I do. Now the next question that I have for you, Mr. Vikrant Kaushal, is that कि अगर there is one stereotype that we want to kill about women and that needs to be erased forever from the history, for future, everywhere. What is that one stereotype that you want to kill forever? Women are emotional. They are not. So they are emotional, but that's not their weakness. That's their strength. So in one word,
you guys are not emotional. You are emotional, but it should not be judged on that parameter, you know, कि ladies तो बहुत emotional होती हैं, हम लोग कुछ भी बात करेंगे तो पता नहीं कौन सा एंगल कहाँ चला जाएगा. So I think emotional is the right word for that. Perfect, absolutely. मतलब emotions के साथ तो there is no cut to talk about it as per usual. So moving forward, we do have another following question to your beautiful answer of addressing that you know women are not really emotional creatures but really strong. So I mean, what is that small but meaningful gesture that men can do daily to make your women feel valued, feel respected, feel confident in their day-to-day lives? So purely depend करता है कि किस वुमेन की बात हो रही है. अगर वो ऑफिस में है, घर में है, अगर इसको ओवरऑल कंबाइन करें, is like helping her. End of the day थोड़ा सा ऐसा हमारा circle and Indian culture is like कि women are more centered towards helping at home, cooking हो गया या फिर or other activities, whereas evenly I and we also do a lot, so I cook majority of the time in the evening when I reach home early. But point ये है कि I think the daily task के अंदर is two things. One is like helping her in जैसे भी आप कर सकते हो. Second, understand her, listen to her, what she has to say about the whole day, कि पूरा दिन क्या हुआ, क्या क्या troubles थे या क्या अच्छी चीजें हुई. Instead of normally क्या होता है, हम लोग जाकर के बस बम्बार्ड कर देते हैं, सर जी ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा. Whereas होना क्या चाहिए कि हमें उनसे पूछना चाहिए. So I think on a daily basis, one thing is like give your ears, understand her and listen to her and help her. हमारा पति कैसा है, विक्रांत कौशल जय था. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. जिस दिन मैं थोड़ा अराउंड 7:30 8 o'clock में शाम को अगर घर पहुंच जाता हूँ इवनिंग में, आई कुक. ये एडवाइस सारे लड़कों के लिए है. दे आर मैरिड और अनमैरिड, सीख लो. देखो देख के बोल रहे हैं, ये सीखना जरूरी भी है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जिस दिन गुस्सा है तो उस दिन तो खुद ही बनाना पड़ेगा, तो पहले से ही प्रैक्टिस करते रहो, रिहर्स करते रहो, सो दैट यू कैन कुक अपने लिए भी और उसके लिए भी. And what about independent women of today? Like, what do you think? Like, what's the mindset of men thinking about the independency, being financially, aware, financially free, all of those segments? Yeah, I think अनुभव जो बोल रहे हो सही, मतलब एज पर यू थॉट, मेरा थॉट थोड़ा अलग होगा. और जो क्वेश्चन में पूछा वो इंडिपेंडेंट वुमेन के रिलेटेड है, उन वुमेन्स के लिए जो खुद चल के अपने आप को, दे वांट टू स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, दे वांट टू स्टेप आउट ऑफ दैट ओनली घरेलू वाली चीजों से, और वो अलग से एक अपना कर रहे, तो उनको वर्थ दिखाना, दैट वाज द थिंग ना, उनको वर्थ दिखाना. तो समटाइम इट्स ट्रू, बट नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. एक मूवी भी थी, आई एम ऑनेस्टली मिसिंग द नेम, जिसमें द मैन वाज हैंडलिंग एवरीथिंग. करीना कपूर, कियनका. सो द गाय वाज हैंडलिंग एवरीथिंग. जैसे यू फेस प्रॉब्लम विद द कबर्ड, आई मैनेज वेरी वेल. And Anchal sometimes asks me to manage, his and my son's thing also. So I think वो part dinosaur ages. आज का पार्ट इक्वालिटी एंड वुमेन इज समथिंग, जैसे वर्थ दिखाना इज नॉट बेसिकली वर्थ, कितना वर्थ हो, इट्स काइंड ऑफ एन एप्रिसिएशन ऑल्सो. समटाइम वी हैव टू एप्रिशिएट. इफ समवन इज अचीविंग समथिंग, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसके अंदर यू हैव टू गिव हर ऑल्सो सम एप्रिसिएशन. यू आर राइट. व्हाट पॉइंट आई एम मेकिंग हियर कि ये इंडिपेंडेंट के नाम पे ना उनसे जबरदस्ती काम मत करवाओ. ट्रू, बट वो वुमेन जो घर का काम करना चाहती हैं, घर पे रहना चाहती हैं, दैट इज लाइक नॉट, दिस क्वेश्चन वाज नॉट फॉर देम. वुमेन हु वांट्स टू get out and explore the world and so called it's so called होता है ना, वो myth को खत्म करना कि जी हम घर के लिए बनी है. No, it's not like that. It's new world, it's new times, and it's equal. So I think independent word की जगह पे अगर ये बोला जाए कि self-made woman who wants to do the things on her own. और दूसरी बात ये कि देखो, बिना men के भी काम नहीं चलेगा, बिना women के भी काम नहीं चलेगा. Sometimes women have to come to men for something. Sometimes we have to ask. सबसे सिंपल सा आंसर है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, who you go to first, like to the closest member that you have in your house, and might be possible chances वो आपकी sister होगी.
शायद मदर के पास में जा पाओ. ठीक है, if you don't have a sister then I'm so sorry. If you have, make one sister and give her on Rakhi lots of money. She will listen to you more. So I think on that perspective, you know, it's about self-made. So इसीलिए I said अगर वो काम करना चाहती हैं उनको भेजो, encourage करो. Because I think that's a harsh reality of our society that these days you know they okay, everyone wants to show the talent and they want to do whatever kind of passion they have and the skill set they have. They would like to go out of the world and they want to explore those things. But again like we all are part of the society and just to sugarcoat here only if we say that कैसा करना है, but अगर वो नहीं करना चाहती है ना तो don't force them to work actually. I was saying like suppose करो मेरे घर का खर्चा 2 लाख रुपए, ठीक है, एंड मुझे करंट जो मेरी अर्निंग्स हैं वो 1.5 लाख रुपए की, मेरे को 50,000 शॉर्ट पड़ता है. तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग माई वाइफ की कैन वी डू समथिंग दैट वी कैन कवर अप आवर एंटायर एक्सपेंडिचर्स विद इन 1.5, बट आई वुड आस्क हर व्हाई डोंट यू गो एंड स्टार्ट वर्किंग Just for that 50,000. even so I think what is ideal Right. if she wants to work. So I think ये जो mindset है ना हमें ना सोसाइटी के अंदर ये चेंज करना होगा. एंड Which is correct. I think 50 like you all are we are working here, we know that कि वर्क प्रेशर होता है, काम की चीजें होती हैं एंड उसी के साथ साथ उनको घर की चीजें भी देखनी होती हैं. वो प्रेशर का कोई डिस्कशन क्यों नहीं करता है कि एक तो कॉर्पोरेट का जो वर्क कल्चर है, ठीक है, वहां पर जो टारगेट्स के प्रेशर्स हैं, उनके जो KRAs हैं उसके प्रेशर है, एक तो वो प्लस ठीक है तुम इंडिपेंडेंट बना रहे हो, बोलो कि जो घर वाला प्रेशर है वो जीरो कर दोगे, नहीं करोगे. They have to manage both. Yeah, professional and personal. They have to do a right upbringing to the child. Household chores करने हैं, ठीक है, अपने जो in-laws हैं उनके लिए भी सब कुछ करना है. I mean, so see, you are married now. Yeah. I think you can get me what exactly I want to say. I do. I mean, every day I struggle, and I truly understand what you're coming from. ठीक है. And it's for for me it's very easy to make my family understand कि मैं तो काम करके आया हूँ, मैं नहीं करूँगा. Is it easy for you to make them understand? No, of course not. I mean, as a woman, it's just unaccountable. अगर हम बात करते हैं कि ठीक है हम ना इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, तो फिर सिर्फ एक जगह माइंड को मत रखो, 360 डिग्री से रखो, फिर वहां फिर भी नहीं बोलोगे. True. और सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करना, 100% agree. तुम्हारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करना होगा, तुम्हारे पूरी एंटायर फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा उससे. Exactly. या फिर उसको बोल दो कि ठीक है बेटा तुम मत काम करो, वी आर ऑल्सो ओके. Yeah. तुम फिर उसमें भी ओके नहीं हो, क्योंकि तुम्हें फिर अपनी जो एक्सपेंडिचर है वो भी 1.5 से 2 पे लेके जाए, ठीक है, और तुम्हें फिर ये भी लगता है कि मतलब शी कैन वर्क, शी इज वेल स्टडीड, तो वो क्यों काम नहीं कर रही हो. सही बात है. Absolutely. Makes sense. Noted. So here I want to add one question to Anubhav. There is an old saying, आदमी के दिल का रास्ता पेट से जाता है. बोला था मैंने. What is the way through a woman's heart? अब पता नहीं मैं सच सही बोला या गलत बोला. अगेन दिस इज द राइट एंड रॉन्ग, इट्स ऑल जस्ट पर्सपेक्टिव. आई थिंक दे वांट योर टाइम. I mean, time means the quality time. It's not like you are with them, but That's a दिल का रास्ता. you are on your phone, on your this thing. उन्हें कुछ नहीं चाहिए. They just want your quality time. उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनकी फीलिंग्स को समझो. I think True. this is just they want. क्वालिटी टाइम के साथ साथ गिफ्ट्स भी दो, हैप्पी रखो, शॉपिंग पे लेके जाओ. और तो बता सब बार ये चीजें वो कर रहे हैं, ये तक क्या सपोज कर रहे हैं. आजकल हमको लगे थी बहुत मॉनिटरी. कुछ ना पता नहीं क्या कुछ तो I think हमें ये clips भेज. ये होता है. हाँ ये होता है. मॉनिटरी का तो नहीं पता, बट हाँ यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो अनुभव ने बोला कि जो क्वालिटी टाइम है वो होना चाहिए, और वो ऐसा टाइम होना चाहिए कि यू आर जस्ट कम्प्लीटली इनटू हर. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए. उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर वॉचिंग अ टीवी एंड शी इज सेइंग समथिंग. हाँ दैट शुड नॉट बी द आंसर शुड बी लाइक यू नो. तो मेरा तो बहुत सिंपल एक वैसे रूल है एट होम. व्हेन वी ईट आई सिट बैंग ऑपोजिट टू हर. चाहे टीवी चल रहा हो, चाहे म्यूजिक चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, आई फेस हर एंड देन आई एम डूइंग माई डिनर. दिस इज अ फिक्स्ड.
next to my son also sits there. So at least, because time ki shortage sabke paas hai, but at least at that time, we are facing each other and we are talking something. Okay, so I mean, we just have one question which is like an agenda in today's time and in the previous times, and I mean obviously in future as well. It's a topic जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है और अभी तक उसका कोई solution नहीं निकल रहा है. Yeah, nobody addresses about it, and obviously I mean we might have heard it from our mothers, from our sisters, from our wives and everyone. And I mean, we should address this. I mean, obviously, as men, you might understand the, thought behind it. So in India, I mean, cultural views on menstruation vary. Like, everyone has their own opinions and everything. And every cultural significance has their own kind of set of rules that needs to be followed and everything. So in some southern regions, like, for example, they have this very, beautiful thing wherein they honor women. They honor women. They sort of, have the spiritual things going around women. And in some way areas of north, there is, various restrictions which go around, and which is like, you don't have to go to the kitchen. You can't touch things. You can't, wash your hair. You cannot, just step out or do things like that. There are certain things, which is sad. I mean, that's really not something that we would like to kind of listen in our day-to-day life. Or I'm sure if you are a woman, you can just imagine that ways. As a human, you won't appreciate the fact that you have been restricted to certain general day-to-day activities. So what is your take or what is your point on it? I mean, starting with Anubhav. Okay, all these restriction has some scientific answers basically. Because पुराने टाइम में क्या होता था, like on these days, women's body is not at par with her full strength and something. तो वो ये बोला था कि तुम किचन पर मत जाओ. I mean, तुम काम मत करो. इसका मतलब था कि तुम रेस्ट करो. अभी क्या है कि विदाउट नोइंग द स्पेसिफिक रीजन, बिकॉज अभी लोगों को नहीं पता है, अभी कुछ भी समझ में आ गया, कुछ भी ऐसा लग गया तो ठीक है किचन में जाना, मतलब इसका ना कुछ रिलीजियस बात होती थी. वो ऐसा नहीं था, उसका एक मीनिंग था. इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एग्जैक्ट मीनिंग, आपने बोल दिया किचन में मत जाओ. बट ठीक है, लाइक एवरी वुमेन हैज अ डिफरेंट बॉडी टाइप. किसी को उस टाइम पर आई मीन बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं, किसी को बॉडी ईजी भी होती है, तो अगर ईजी है तो उसे करना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, जैसे हेड वॉश मत करो, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन था. आप हेड वॉश करोगे, आपकी बॉडी ऑलरेडी मतलब इतनी वार्म है उस टाइम पर, इतना आप फीवरिश सा फील कर रहे हो. अगर आप हेड वॉश करते हो या नहीं करते हो तो क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर खराब होगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है. इसका भी एक लॉजिकल रीजन था, बट नहीं, उस रीजन को ना समझ करके उसको उससे स्टीरियोटाइप बना करके सोसाइटी ने ऐसे पोर्ट्रे किया कि अभी मतलब वो ना एक रिलीजियसली एक मेथड बन गया, एक रिचुअल बन गया कि हमें ऐसा ही करना है. आई थिंक दिस इज व्हाट माय टेक इज. अगर कोई करता है तो उसे करना चाहिए. ये जो स्टीरियोटाइप्स बने आए हैं या बन गए हैं या चल रहे हैं, आई थिंक इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको हटाएंगे कैसे? ये किसके हाथ में है? ये उस लेडी के हाथ में नहीं है, बिकॉज उसने तो स्टार्टिंग से देखा ही यही है, सीखा ही यही डाउनलोड हुआ है नीचे. अगर वो जैसे नॉर्थ में बोला कि वहाँ अलाउड कर देते हैं, दैट्स फाइन. साउथ में नहीं है तो दैट्स हर थिंग, हर जेनेटिक्स बीन पास्ट, ऐसे ही उसको बताया गया. चेंज किसको करना है? मेंस हैव टू चेंज, वी हैव टू चेंज. इफ शी इज कंफर्टेबल, जैसा अनुभव ने बोला, शी इज कंफर्टेबल एंड हर बॉडी इज अलाउइंग हर टू गो टू द किचन एंड डू सम वर्क, तो आई थिंक वो हमें सपोर्ट करना है. इट्स नॉट समथिंग कि क्या चले आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या क्या वर्डिक्स हुए थे. जैसे कबीर सिंह मूवी के अंदर था, उसमें बहुत अच्छा पॉइंट दिखाया था. उसमें बता रहे थे कि अगर उसको इफ शी इज गोइंग थ्रू दैट फेज, तो उस टाइम पे तो उसको ये बोलेगा कि हाँ जा काम कर, ये कर, वो कर, और यू विल कंफर्ट हर. सो ये ऑनेस्टली ये हमारे पे डिपेंड करता है कि उस समय हम उसे कैसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू मी एंड ओपनली आई एम सेइंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस उस सिचुएशन में क्या करना चाह रही है. दैट्स हर कॉल. इफ शी वांट्स टू बी द प्लेस दैट शी वांट्स टू बी, शी विल बी. इट्स कंप्लीटली हर चॉइस. इफ बॉडी इज अलाउइंग, उसका बॉडी अलाउ कर रहा है कुछ करने के लिए, करे. नहीं कर रहा है तो आई एम देयर फॉर हर. It's a men's we have to change, and छोटी सी लाइन कहते हैं ना, जैसे if you want to change the world, do the first change with yourself. So if एक start करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, then I think then slowly gradually सब बंद हो जाए. Diving into the rapid fire section, we will start with Yashika diving into the questionnaire with the guys.
Yes. So my question is to you. One thing women do that men will never understand. Tick 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 tick. मैं ना थोड़ा सा वैसा आंसर आ रहा था. आप वैसा आंसर दे सकते हो. We won't send this clip. ठीक है. Wait, हाँ. Food, A food. like cooking. Okay, what's scarier? A girlfriend's or wife's long paragraph that you have not addressed, or a client's last minute change request? Obviously, the paragraph that I haven't read. That is the answer. Client तो बाद में आएगा, घर की war पहले start हो जाएगी. Okay. So what is more important? Addressing emotionally quotient or communication gap in the relationship? Communication gap, I think, is more important. Okay. What is the best thing you think is good about working with women? Smiling faces. Okay. Give a scenario or moment or any situation that you might have come across wherein you said to yourself that I'm glad that I'm not a woman. Yeah. घर पहुंचा हूं और खाना नहीं है. बहुत बड़ा इशू आया है. सच में इनके दिल का रास्ता पेट से होके जाता है. ये प्रूव हो गया. This is so true. Sir, Food. Everywhere is food. Okay. Next is, if your female best friend had a theme song, what would it be? तुझ में रफ दिखता है यारा, मैं क्या करूं. वाइफ बहुत मारेगी आपको घर पे ले जाके. थोड़ी दिखेगा रब. सब में नहीं देख सकते ना. तो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो ये बेस्ट फ्रेंड और वाइफ वाला कॉन्सेप्ट. अभी फ्रेंड जोन का सिस्टम खत्म ही नहीं हो रहा है. Okay, and so next question would be, what's a phrase women say that men will never understand? One phrase, एक word जो कभी आदमी को समझ ही नहीं आता है और वो woman बोलती है. 10 मिनट में आती हूँ. I am ready and take me. Coming in 5 minutes, I think. नहीं समझ में आता है. what's the most valuable piece of advice a woman has given you? Don't take it. Don't take it. Like too seriously to yourself. Nice. So are you doing that? Advice है, it depends पर लेता हूँ नहीं. If you could ask one question to any woman in this room, who would it be and what would you ask? Any one question that you want to know about women, about ये last question. You just need to answer. So, to Shrishti, how are you feeling finishing this podcast right now? क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो गया ना कि men's are always like this time answering on the Women's Day special. Okay, so addressing the fact that on Women's Day we are answering the question from this lovely man sitting next to me. We are really relieved. We are really happy to all the outcomes that have come across from you three gentlemen. And it was such a lovely conversation. I can't just, register the fact that we've known a lot of things, a lot about periods, a lot of about equality, about love, about communications, and such wonderful thoughts that you guys have possessed. We felt so valued. Truly. Thank you to all the three of you. And trust me, अगर वुमेन है तो लाइफ सेटल्ड है, अगर वुमेन नहीं है लाइफ में तो लाइफ सेटल्ड नहीं है. मैं जानता हूँ अगर 3 दिन के लिए मेरी वाइफ चली जाए तो पहला दिन तो बड़ा मस्त जाएगा, सेकंड डे भी मस्त जाएगा, थर्ड डे में चाबी गुम हो चुकी होगी, सॉक्स कहाँ रखे हैं ये नहीं पता होगा, 5-6 बार मैं ऑर्डर कर चुका हूँ पिज्जा और उसके बाद फोन कर रहा हूँ ग्रोसरी की लाइन में लग के, बेब कौन सा आटा खाते हैं हम लोग. For sure, that is real. Okay, so thank you so much, guys, for this all the valuable insight, all your perspectives, everything. We really liked it. And okay, so let's wrap it up. Thank you so much. Thank you. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Congratulations to every woman and thank you for making it so successful. And thank you for hosting us being on the Women's Day. Okay.